Okay, so I know what you are thinking. Is Vietnam still worth visiting? Honestly, it feels like everyone is talking about Vietnam. The photos, the reels, the must-go places nearby. And sometimes I hear people saying that isn't it too crowded, too touristy, and too overhyped. But let me tell you one thing. We spent 10 days in Vietnam. And here's the thing. Even if some places are touristy, every corner has something to offer. So in this video, I'm here to help you plan the ultimate Vietnam trip. We will cover everything, like the best time to go, the must-visit places, a rough itinerary, budget estimations, and some insider hacks that you won't hear from anywhere else. So come, let's explore Vietnam with me. So, the very first question, when to visit Vietnam and for how long? Honestly, Vietnam is a year-round country, but the weather definitely changes from north to south. The best time to visit Vietnam is from March to May or September to November. So, during these days, if you are visiting Vietnam, then definitely you will find that the sky is clear and weather is very supportive. तो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि you don't have to plan your trips in the month of July and August. क्योंकि वहाँ पे हेवी रेनफॉल होता है एंड टाइफून सीजन भी होता है. लाइक फॉर एग्जाम्पल हमने सितंबर में प्लान करी थी ट्रिप अपनी, स्टिल उसके जस्ट 1 वीक पहले वहाँ पे टाइफून था एंड ऑल्सो इन द मिड सितंबर देयर वाज लैंडस्लाइड्स एंड हेवी रेनफॉल सापा और नैन बिन रीजन में. यूजुअली जो भी नॉर्थ ऑफ वियतनाम आप कंसिडर करते हो तो उसमें हलोंग बे, सापा और इस टाइप के माउंटेन और बीची रीजन आ जाते हैं. तो यहाँ पे अगर टाइफून या हैवी रेनफॉल होगा तो ये सबसे पहले इम्पैक्ट करता है. कई बार हलोंग बे के क्रूजेस कैंसिल भी हो जाते हैं, तो इसलिए आपको ये मंथ्स अवॉइड करने हैं. Then arises the second big question, like for how long you have to plan a trip to Vietnam. So let me help you to plan the itinerary. So we traveled from south to north. इंडिया में आप जहाँ से भी ट्रैवल कर रहे हो, take a flight and land to Ho Chi Minh City, which is in the south of the Vietnam. After that, take another flight, go to Da Nang, which is in the central region of Vietnam. After that, take one more flight to Hanoi, which is the capital city of Vietnam and also situated in the north of the Vietnam. जो फर्स्ट सिटी है हमने वियतनाम में एक्सप्लोर की was Ho Chi Minh City. वैसे Ho Chi Minh City is like 1 day is more than enough because it has that city vibe of Delhi and Mumbai over here in India. But if you are into history, then there are places like Chu Chi Tunnel and Mekong Delta. So you can explore those and maximum like आपको 2 दिन Ho Chi Minh में is more than enough. So when we landed to Ho Chi Minh City, then we checked into our hotel and after that दोपहर में हम लोग निकले Ban Thanh market के लिए. So it will give you the kind of vibe which Sarojini market holds in Delhi. तो उस टाइप का मार्केट है. लाइक आपको वहाँ पे रैल्फ लॉरेन के फर्स्ट कॉपीज मिल सकते हैं. यहाँ पर ये है कि बहुत ज़्यादा चीप नहीं है कि आप अगर ये सोचो कि लाइक बहुत ही ज़्यादा चीप है तो बहुत सारी चीज़ें ले आओ, ऐसा नहीं है. एंड वहाँ पे जो भी प्राइस होगा उसका वो लोग ट्वाइस और थ्राइस करके बताते हैं. सो इफ़ यू आर गुड एट बार्गेनिंग देन डेफिनेटली आप वहाँ पे बहुत अच्छा बार्गेन कर सकते हो. एंड देन वेरी नियर टू Ban Thanh मार्केट इज साइगॉन सेंट्रल मार्केट विच आई पर्सनली लाइक्ड, लाइक बिकॉज वहाँ पे थोड़े ज़्यादा ऑप्शंस थे. बट हाँ, Ban Thanh मार्केट एंड साइगॉन सेंट्रल मार्केट दोनों वियतनाम में एंड स्पेसिफिकली इन हो ची मिन सिटी जाने जाते हैं. सो इट्स अ मस्ट गो प्लेस. सो अगर आपकी शॉपिंग हो गई हो तो देन यू कैन हेड आउट टू साइगॉन सेंट्रल पोस्ट ऑफिस. सो साइगॉन सेंट्रल पोस्ट ऑफिस इट्स ए सिंबल ऑफ फ्रेंच कॉलोनियल लेगेसी इन वियतनाम. फ्रेंच एरा के टाइम पे जो भी पोस्ट कार्ड और जो भी काइंड ऑफ कम्युनिकेशन करते थे वो लोग, दैट वाज थ्रू दिस पोस्ट ऑफिस. मुझे नहीं पता कि आपके पोस्ट कार्ड आपके फ्रेंड्स को मिलेंगे या नहीं मिलेंगे इफ़ यू सेंड समथिंग फ्रॉम दिस पोस्ट ऑफिस, बट डेफिनेटली सिंस इट होल्ड्स अ हिस्टोरिकल कल्चरल सिंबल तो जाना तो बनता है. आफ्टर दैट यू कैन हेड आउट टू द पिंक कैथेड्रल चर्च. So we are here at the Pink Cathedral Church and the prayer is going on. वहाँ पे ऐसा है कि सैटरडे संडे तो वो क्लोज्ड ही रहता है फॉर एनी सॉर्ट ऑफ विजिटर्स एंड वीक डेज में वो कुछ सर्टेन टाइम के लिए ही ओपन रहता है. तो जब भी आप जाओ तो आप गूगल मैप्स पे एक बार
डिस्क्रिप्शन में देख लेना कि वो ओपन है या क्लोज है। अगर आपको हिस्ट्री पसंद है तो आप इंडिपेंडेंस पैलेस या वॉर रेमिनेंट म्यूजियम भी जा सकते हो, बिकॉज हम हनोई में एक सिमिलर टाइप ऑफ इंडिपेंडेंस म्यूजियम विजिट करने वाले थे, तो हमने हो ची मिन सिटी में स्किप कर दिया। पिंक कैथेड्रल के बाद में आप नोएन ह्यू वॉकिंग स्ट्रीट, आई एम नॉट श्योर कि मैं ऐसे सही से प्रोनाउंस कर रही हूँ या नहीं, पर या आई विल ऑल्सो स्पेल आउट द स्ट्रीट नेम हियर इन द वीडियो। एंड ये स्ट्रीट इस टाइप की है कि लाइक यहाँ पे जो फेमस अपार्टमेंट कैफ़े आपने बहुत बार देखा होगा हो ची मिन सिटी में, ये यहीं पे लोकेटेड है। ऑल्सो इट इज़ काइंड ऑफ अ सेंट्रल ऑफ द सिटी, तो कोई भी अगर फेस्टिवल्स होते हैं, कॉन्सर्ट्स होते हैं, सो वो मोस्टली यहीं पे ऑर्गेनाइज होते हैं। एंड इट हैज़ अ वेरी नाइस व्यू एंड वहाँ पे अपार्टमेंट कैफ़े में वैरायटी ऑफ थिंग्स आपको मिल सकती हैं। वेज ऑप्शंस भी हैं, नॉन वेज ऑप्शंस भी हैं, टोटली अप टू यू। एंड वियतनामीज फूड जो फेमस है लाइक फो, बान में, आप यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ट्राई कर सकते हो। सो अब हम जा रहे हैं सिटी बस टूर पे इन हो ची मिन सिटी। दिस इज डेफिनेटली यू डोंट हैव टू मिस, एंड आई वुड रिकमेंड कि 8 से 10 के बैंडविड्थ में ही आप जाओ, बिकॉज द होल सिटी लिट्स अप and this is the best time where you can just hop into the open air bus and just enjoy the weather. And one more thing, to book these packages you can book it through Klook, and it will cost you around like 450 per person INR. This open bus tour is of like 20 to 25 minutes. They take you throughout the city and सारे skyscrapers बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है, तो दिस इज़ अ मस्ट डू एक्टिविटी एंड इट इज़ वेरी नियर टू अपार्टमेंट कैफे ओनली। तो आपको ये जो सारी चीज़ें मैंने बताई ये सब आसपास ही हैं, सो इन अ वन गो यू कैन कवर ऑल दीज थिंग्स। आपके सिटी बस टूर के बाद में यू कैन गो टू वॉकिंग स्ट्रीट। इट इज़ काइंड ऑफ लाइक इट विल गिव यू दैट थाईलैंड सॉर्ट ऑफ वाइब, एंड वहाँ पे बहुत सारे पब्स हैं, कैफ़ेज़ भी हैं, एंड नियर बाई इंडियन रेस्टोरेंट्स भी हैं। तो यू कैन जस्ट वॉक थ्रू दैट लेन एंड इफ़ यू वॉन्ट यू कैन हॉप इन टू एनी पब। माहौल अच्छा रहता है, सेफ रहता है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि हमने हो ची मिन सिटी में सिर्फ एक ही दिन स्पेंड किया है, तो दैट इज़ द प्लान लाइक विच आई टोल्ड यू। बट अगर आप नेक्स्ट डे भी हो ची मिन सिटी में हो तो देयर आर ऑप्शंस लाइक चूची टनल एंड मेकॉन्ग डेल्टा। अगर आपको हिस्ट्री में इंटरेस्ट है देन डेफिनेटली आप यहाँ पे जाओ। पर जो टनल्स हैं लाइक इट इज़ रिलेटेड टू द अमेरिका वियतनाम वॉर, एंड जो भी टनल्स हैं वो थोड़े से कैटास्ट्रॉफिक होते हैं, बट अगर आपका मन है तो आप डेफिनेटली जाओ। तो नेक्स्ट डे आप फ्लाई करोगे दनांग के लिए। आई वुड सजेस्ट कि आप अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट लो, सो दैट बाय 1:30 और 2 PM इन द नून आप दनांग पहुंच जाओ एंड यू हैव द रेस्ट ऑफ द डे विथ योर सेल्फ। सो वी लैंडेड हियर इन दनांग एंड आवर फ्लाइट वॉज स्मूथ। वैसे मुझे ऐसा लग नहीं रहा था कि इतनी स्मूथ होगी। दनांग इज़ अ बीच सिटी एंड वेरी ब्यूटिफुल और वेरी क्लीन, तो डेफिनेटली आप पहला दिन थोड़ा सा रिलैक्स रखो, और वहाँ के जो प्लेसेस है लाइक वहाँ के नियर बाय प्लेसेस है, फॉर एग्जांपल लाइक ड्रैगन ब्रिज एंड मार्बल माउंटेन, ये आप एक्सप्लोर कर सकते हो। और सो नेक्स्ट डे यू कैन प्लान अ डे टूर टू बाना हिल्स। तो यहाँ की जो भी टिकट्स होती है बाना हिल्स की, यू कैन बुक इट थ्रू क्लुक, और एल्स आपके होटल्स में भी ये टिकट्स अवेलेबल होती हैं, तो लाइक दे एंडोर्स इट। एंड आपको जाना कैसे है बाना हिल्स, तो उसके भी दो ऑप्शन है, ईदर यू कैन बुक अ कैब थ्रू क्लुक, आप प्री बुक भी कर सकते हो क्लुक पे कैब, एंड और नेक्स्ट ऑप्शन होता है कि आप होटल्स पे भी रिक्वेस्ट कर सकते हो। तो जब आप बाना हिल्स की टिकट लोगे तो उसमें कुछ चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं, लाइक फॉर एग्जांपल द केबल कार। बाना हिल्स जो है वो वर्ल्ड की सबसे लॉन्गेस्ट केबल कार है, एंड वहाँ पे आप जाओगे तो आपको लाइक कुछ अलग ही लगेगा। आपने कभी इस टाइप के राइड्स डेफिनेटली नहीं देखे होंगे, क्योंकि वहाँ जो नेटवर्किंग है वो भी 7-8 नेटवर्क्स हैं, कि मतलब आपकी जहाँ तक नज़र जा रही है आपको डेफिनेटली ये केबल कार्स तो दिखने ही वाले हैं। तो जैसे ही आप केबल कार से उतरोगे तो फर्स्ट व्यू पॉइंट होगा आपका गोल्डन हैंड ब्रिज। गोल्डन हैंड ब्रिज पे बहुत ज़्यादा क्राउडेड होता है, सो मेक श्योर कि आप थोड़े टाइम पर जाओ, लाइक अर्ली इन द मॉर्निंग अराउंड 9 तक आप वहाँ पे पहुँच जाओ, सो दैट यू हैव एम्पल ऑफ टाइम। ऑल्सो वहाँ का वेदर भी इस टाइप का होता है जो थोड़ा सा फॉगी होता है, तो अगर आप अर्ली इन द मॉर्निंग जाओगे थोड़ा सा एक डिसेंट टाइम पे, तो आपके पास भी मार्जिन होगा कि वो जो फॉगी वेदर है वो क्लियर हो जाए। जब हम लोग गए थे तो इन द मॉर्निंग इट वॉज वेरी क्लियर, वी क्लिक सो मेनी पिक्चर्स, एंड आफ्टर लाइक 4 o'clock अराउंड 3 to 4 PM इट वॉज वेरी फॉगी। तो हमने दोनों एक्सपीरियंस कर लिया। देन बियर कैफ़े है वहाँ पे, लाइक कॉम्प्लीमेंट्री 1 बियर एंड फ्रेंच फ्राइज मिलती है, और अगर कोई बियर नहीं पीता है तो आप डबल फ्रेंच फ्राइज खा सकते हो, और एल्स कोई अगर फ्रेंच फ्राइज नहीं खाता है तो डबल बियर पी सकते हो। तो दैट इज टोटली अप टू यू। देन यू कैन हॉप इन टू फ्रेंच विलेज, दैट इज इंक्लूडेड इन द पैकेज इटसेल्फ, जिसके लिए आप पे कर रहे हो। एंड आफ्टर दैट अल्पाइन कोस्टर के लिए आपको अलग से पे करना पड़ेगा। अल्पाइन कोस्टर में इट इज़ अ मस्ट डू एक्टिविटी। वहाँ पे जो भी रोलर कोस्टर्स होते हैं आपको खुद ही उन्हें कंट्रोल करना पड़ता है, 1 सीटर 2 सीटर टोटली अप टू यू। एंड आई वुड टेल यू
कि वहाँ पे 2 जगह पे ऐसा होता है कि कैमरा फ्लैश होता है इन बिटवीन द राइड। सो वो कुछ आपको कैप्चर नहीं कर रहे हैं, दे आर जस्ट कैप्चरिंग योर पिक्चर। सो व्हेनेवर यू सी दैट फ्लैश जस्ट स्माइल, क्योंकि वो आपकी फोटो बाद में जब आप आओगे तो वो आपको फ्रेम करा के देंगे। तो मेक श्योर कि वो फोटोज, क्योंकि आपके पास तो फोन है नहीं, तो जस्ट कीप ए स्माइल एट दैट टाइम। आफ्टर लाइक 4 o'clock अराउंड 3 to 4 PM इट वॉज वेरी फॉगी। तो वो बहुत अच्छा था, लाइक बिकॉज वेदर बहुत अच्छा था, एकदम ठंड थी, बादल नीचे थे एंड जगह तो फ्रेंच विलेज थी, तो लाइक इट वॉज ब्यूटिफुल। सो बाना हिल्स के बारे में तो मैंने आपको ऑलमोस्ट सब बता दिया। एंड लाइक आफ्टर दैट हम 5 o'clock वहाँ से लीव किए एंड इट वॉज लाइक 40-minute राइड। देन वी अगेन रीच टू दनांग। तो थोड़ी देर हमने रिलैक्स किया एंड आफ्टर दैट वी जस्ट हेडेड आउट फॉर द सनसेट एट द बीच फ्रंट। वहाँ पे बहुत सारी लाइन से पब्स एंड रिजॉर्ट्स हैं। वी वेंट टू दिस रिजॉर्ट काला काला and it was a nice vibe. Then we had our dinner. We also brought some coffee for our like friends and family. So today we are leaving Da Nang and heading to Hoi An for a day trip. दो ऑप्शंस अवेलेबल हैं। फर्स्ट, आप होई आन में होटल कर सकते हैं और एल्स जैसे हमने दनांग में होटल किया वैसे आप कर सकते हैं। So early in the morning we headed out to Hoi An and for that we booked our cab through Grab. एंड यूजुअली वहाँ पे आप ये पैटर्न नोटिस करोगे कि लोगों को उतनी ज़्यादा इंग्लिश समझ में नहीं आती। तो लाइक ये जो ड्राइवर की डिटेल्स मैं आपको अभी देने वाली हूँ, he was a like he understood, he knows how to use Google Translator and it was the communication was very smooth. And in the middle what he suggested is to take coconut boat ride. So I would suggest कि आप on the way में ही ये जो coconut boat ride की एक्टिविटी है ये आप कवर करो। And this costed us like 320 or 330 rupees INR per person. It is kind of mangrove forest. आपको बीच में राउंड शेप्ड कोकोनट बोट राइड्स होती हैं, वहाँ पे आपको लेके जाएंगे। एंड आपने एक एक्टिविटी वहाँ पे देखी होगी, लाइक वो आपको ऐसे एक बोट पे अलग अलग साइड में बैठने के लिए बोलेंगे एंड देन दे जस्ट रो द बोट सो फास्ट। तो आपको वो जो एक्टिविटी है अगर वो आपको बोले तो आप ये मत बोलना कि हाँ ठीक है यार वी आर विलिंग टू डू दैट, बिकॉज दे वुड चार्ज एक्स्ट्रा फॉर दैट। एंड आफ्टर दैट वी हेडेड आउट टू होई आन। तो होई आन हम पहुंचे 2 या 3 बजे एंड द वेदर वॉज लाइक सुपर 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 हॉट। एंड देन उसके बाद में आपने एक चीज़ और फॉर दिस इज अ टिप फॉर गर्ल्स, आप वियतनाम में जिस भी सिटी में जाओगे आपको कलेक्शन डिफरेंट मिलेगा, जो भी क्लोथिंग का होगा। जो हो सकता है कि आपको हो ची मिन में मिल रहा हो वो आपको होई आन में नहीं मिलेगा, और वो डेफिनेटली आपको हनोई में तो नहीं मिलने वाला। तो अगर कुछ पसंद आ रहा है तुरंत ले लो। एंड ऑल्सो आई वुड लाइक टू लेट यू नो कि होई आन एक टेलरिंग कैपिटल भी है। जो भी आपको डिज़ाइन करवाना है यू कैन जस्ट गाइड देम अकॉर्डिंगली एंड वो आपको 24 आवर्स में पूरा उसको टेलर करके वो आपको रैप करके आपके होटल्स में भी भेज सकते हैं। एंड आफ्टर दैट जब थोड़ा सा वेदर चिल हो गया लाइक अराउंड 5, देन वी हेडेड आउट टू द सेंटर ऑफ द होई आन। एंड वहाँ पे जाके हमने वहाँ पे रिक्शा राइड्स होते हैं, तो दैट कॉस्टेड अस अराउंड लाइक 600 पर पर्सन आई थिंक। वो आप चेक कर लेना, वो आपको पूरा सिटी टूर दे देते हैं। होई आन कोई बहुत बड़ी सिटी नहीं है, इस कारण से लाइक इट इज़ अगेन 15 to 20 मिनट्स एक्टिविटी। तो 6-6:30 बज चुका था एंड इट वॉज द टाइम ऑफ सनसेट। बहुत ही प्यारी वाइब हो रखी थी, लाइक बिकॉज वहाँ पे बहुत सारे क्यूट कैफ़ेज अलाइंड हैं एंड ऑल द वॉल्स आर पेंटेड इन येलो और शेड्स ऑफ येलो, तो वो काफ़ी ज़्यादा एस्थेटिक भी फील करता है। एंड उसके बाद में 2 चीज़ें हैं जिस रिवर पे लैंटर्न लिटिंग होती है, वहाँ पे एक रो बोट का ऑप्शन है और स्पीड जेट का ऑप्शन है। तो स्पीड जेट पे आप अवॉइड करो जाना, बिकॉज स्पीड जेट में वो लोग क्या करते हैं कि दे जस्ट गिव यू अ टूर ऑफ दैट सर्टेन एरिया लाइक विच इज़ नॉट एग्जैक्टली सराउंडेड बाय द लैंटर्न। तो आप जाओ रो बोट्स पे, तो वहाँ पे वो आपको पर पर्सन 2 कैंडल्स देते हैं। उनका ऐसा बिलीफ है कि इस कैंडल को लिट करके उसको रिवर में ड्रॉप करने से आपकी विशेस पूरी होंगी। इट इज़ काइंड ऑफ द सेम बिलीव दैट वी ऑल्सो होल्ड। तो उसके बाद में लाइक आप 9-9:30 बजे तक सारी एक्टिविटीज से फ्री हो सकते हो। एंड इट इज़ अ वेरी ऑर्गेनाइज्ड प्लेस, वेरी क्लीन। एंड लैंटर्न फेस्टिवल और लैंटर्न सेलिब्रेशन यूजुअली कहीं और नहीं होता। तो अगर आप वियतनाम जा रहे हो तो होई आन तो डेफिनेटली इट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल सिटी, मतलब आप होई आन छोड़ नहीं सकते। एंड उसके नियर बाय लाइक नियर टू दैट रिवर वहाँ पे बहुत सारे रेस्टोरेंट्स, बहुत सारे कैफ़ेज़ हैं, इंडियन रेस्टोरेंट्स भी हैं। तो यू कैन जस्ट हॉप इनटू एनी इंडियन रेस्टोरेंट। वहाँ पे शॉपिंग के ऑप्शंस भी हैं, आप शॉपिंग भी कर सकते हो। एंड अगर आपके पास दोपहर में थोड़ा टाइम है तो आप वहाँ की जापानीज टेम्पल या वहाँ पे भी कुछ पगोडास अवेलेबल हैं, वो भी आप हॉप इन कर सकते हो। दैट डिपेंड्स ऑन द बैंडविड्थ यू हैव गॉट। तो इसके बाद में लाइक वी रैप्ड आवर डे
So next day we took a flight from Da Nang to Hanoi. And I would say कि आप early in the morning की flight लो क्योंकि you will reach Hanoi at a decent time. And then we checked into our hotels. After that we after getting freshened up, we just headed out to Mason Central. So Mason Central, which is now a museum, was earlier a prison. जब फ्रेंच लोगों ने वियतनाम पे रूल किया था, so this used to be a central jail. And when you visit this Mason Central, तो आपको वहाँ पे audio books भी मिलेंगे which you can buy. And it will like all the details, like how they used to keep the prisons, all the dark cells and everything, like जिन लोगों ने भी उनके लिए sacrifice किया for the freedom, उनके बारे में भी वहाँ पे लिखा हुआ है. So I mean it is a kind of dark reality, but yeah, we know that it is the truth. And also it is a kind of tribute to all those people who have sacrificed their life for Vietnam. So after visiting Mason Central, we headed out to Hau Kem Lake. Hau Kem Lake, actually it is situated in the middle of the Hanoi, kind of center of Hanoi. And जब आप वहाँ पे visit करोगे तो there are nearby pagodas also. I will mention the name of the pagodas in this video. So आप बस ये है कि वो 5 o'clock तक mostly close हो जाते हैं, तो आप 5 o'clock के पहले ही उनको visit करो. And one more thing, whenever you visit a pagoda, so आपको make sure करना है कि you don't have to wear sleeveless and shorts, कुछ भी allowed नहीं है. So अगर आप कोई भी pagoda जा रहे हो, so just carry a jacket and wear a lower for the time being, because I was not aware on that and so I was not able to go. So जैसा कि मैंने आपको बताया कि हाउ केम लेक इज़ द सेंटर ऑफ हनोई सिटी. सो आपको वहाँ से सराउंडिंग में बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी एंड आपको वहाँ पे ये भी दिखेगा कि बहुत ज़्यादा फ्रेंच इन्फ्लुएंस्ड है. सो यू कैन ऑल्सो विजिट ओपेरा हाउस एंड ऑल दोज प्लेसेस. इट इज़ काइंड ऑफ गुड. इफ़ यू हैव टाइम देन यू कैन विजिट. एंड वहीं से लेक से वॉकिंग डिस्टेंस पे ही यूनिक्लो का एक स्टोर है जो कि इंस्टाग्राम पे आपने देखा होगा, बहुत ज़्यादा फेमस है. सो यू कैन ऑल्सो विजिट दैट. So the next thing which you can do is going to the train street, the famous train street of Hanoi. And आप जब भी visit कर रहे हो, so make sure कि आप टाइम टेबल जो भी ट्रेन का है वो आप चेक कर लो, so that you don't have to wait and waste your time over there. But make sure कि आप 6-6:30 बजे तक वहाँ पहुँच ही जाओ, क्योंकि उसी के बाद में वो certain trains होते हैं and कुछ days पे 7:30 के बाद कोई ट्रेन नहीं आती है. एंड जब आप विजिट करोगे ट्रेन स्ट्रीट पे, सो हो सकता है कि this happened with us. There was a lady and she was asking us कि आपके पास कोई प्री रिजर्वेशन है या नहीं है किसी भी कैफे का. सो हमने कोई भी रिजर्वेशन नहीं करा था. So she was telling that you cannot go inside without any reservation. But we didn't listen to her and we just casually went. And after that there were so many cafes which were, I mean वहाँ पे कोई भी प्री रिजर्वेशन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी. तो आप भी यही करो, क्योंकि वहाँ पे मोस्टली इस टाइप के स्कैम्स होते हैं. सो आप उन स्कैम्स में मत पड़ना. एंड वहाँ पे बहुत सारे कैफ़ेज़ हैं. यू कैन चूज़ एनी कैफ़े नियर बाय. जस्ट मेक श्योर कि आप ट्रेन स्ट्रीट से थोड़ा सा फॉर सेफ्टी पर्पज़ आप थोड़ा सा अंदर तरफ बैठो. ट्रेन स्ट्रीट की जो एक्टिविटी है इट विल टेक अराउंड लाइक 1.5 hour क्यूमुलेटिवली. तो उसके बाद में आपके पास टाइम बचता है तो आप लाइक यू कैन गो एंड विजिट ओल्ड क्वार्टर्स. ओल्ड क्वार्टर्स में आपको शॉपिंग सेंटर्स मिलेंगे बहुत सारे. व्हाट आई हैव नोटिस्ड इज़ कि हनोई का कलेक्शन अच्छा है कपड़ों में. मतलब आपको कुछ तो पसंद आ ही जाएगा, आप डेफिनेटली लेके आ सकते हो. After that you can visit the beer street and what I have heard is beer street पे सबसे ज़्यादा like world की सबसे cheapest beer मिलती है. You can go and you can visit. So it's kind of that feeling like एक lane है and you have pubs nearby. So उसके बाद में हमने like we wrapped our day and we headed back to our hotel. So next day we headed out to Halong Bay. Halong Bay एक UNESCO heritage site है and हनोई से हलोंग बे जाने के लिए आपको minimum 3 hours लगेगा. सो मैंने एक पूरा डिटेल्ड वीडियो बनाया है हलोंग बे पे. आई विल पुट द डिस्क्रिप्शन इन द वीडियो. एंड जब आप हलोंग बे पहुंच जाओगे सो देर आर 2 ऑप्शंस. वन इज डे 2, द सेकेंड इज ओवरनाइट क्रूज. दोनों की बजटिंग में काफ़ी ज़्यादा अंतर है. सो ऑल द डिटेल्स मैंने उस वीडियो में डाला है. यू कैन जस्ट चेक आउट फॉर ऑल दोज डिटेल्स. आई वुड से अगर आपका बजट और टाइम दोनों आपको अलाउ करता है तो गो फॉर दिस ओवरनाइट क्रूज. लाइक वी वेंट टू द ओवरनाइट क्रूज एंड वहाँ पे हमने पूरा दिन वहाँ पे स्पेंड करा. एंड नेक्स्ट डे अर्ली इन द मॉर्निंग लाइक वी चेकड आउट फ्रॉम आवर क्रूजेस अराउंड 10:30 एंड अगेन 2 से 3 घंटा ट्रैवल करके वी हेडेड बैक टू हनोई. सो हनोई पहुंचने के बाद में आपके पास 2 ऑप्शंस और बचते हैं. इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू कि आप किस तरीके से ट्रिप प्लान कर रहे हो. आर्स वाज अ 9-day ट्रिप एंड वी एंडेड आवर ट्रिप इन हनोई एंड वी ट्रैवल बैक टू इंडिया. बट अगर आपके पास टाइम है, लाइक इफ यू हैव गॉट 1 day,
तो 1 डे के लिए ऑप्शन है निनबिन, आप जा सकते हो फॉर अ डे टूर। अगर आपके पास 2 या 3 दिन है तो सापा is near to Hanoi. You can visit over there. It's a kind of mountain city. So all the mountain lovers, I will say कि आप सापा भी विजिट कर सकते हो अगर आपके पास टाइम है तो। और अगर आपके पास में यहाँ पे और ज़्यादा दिन है, लाइक 3 और 4 डेज आपके पास हैं, तो आप कर सकते हो ट्रैवल फुकॉक। फुकॉक इज़ अ वीज़ा फ्री आइलैंड इन वियतनाम। तो कई लोग ऐसा भी करते हैं कि लाइक अगर उन्हें ज़्यादा वियतनाम नहीं घूमना होता है तो वो हनोई से ट्रिप स्टार्ट करते हैं and they go to Phuoc. But I would say, like personally, this is what I feel कि दनांग is a very beautiful city which you should not skip. Also Hoi An. तो हमने इस कारण से इस तरीके से प्लान करा, पर अगर आपके पास टाइम है तो फुकॉक भी एक वीज़ा फ्री आइलैंड है, तो आप वहाँ पे विजिट कर सकते हो। इट इज़ ऑल्सो लाइक इंस्टाग्राम पे काफ़ी ज़्यादा वायरल है आजकल। सो दिस इज़ हाउ यू कैन प्लान योर ट्रिप। सो द क्वेश्चन अराइजेस हाउ टू रीच वियतनाम। इंडिया में आप जहाँ भी जिस भी मेजर सिटी से ट्रैवल कर रहे हो, आप हो ची मिन सिटी या हनोई में अपने अकॉर्डिंग लैंड कर सकते हो। एंड आपको बुकिंग कहाँ से करनी है, बुकिंग डोमेस्टिक या इंटरनेशनल जो भी आपको बुकिंग्स करनी है वो आप इधर booking.com, अगोड़ा, यात्रा, स्काई स्कैनर पे आप पूरा देख सकते हो और उसके अकॉर्डिंग आप इन कोई भी साइट्स में से इंटरनेशनल या डोमेस्टिक फ्लाइट बुक कर सकते हो। सेकेंड पॉइंट कि कौन से फ्लाइट्स आपको ऑप्ट करने हैं, तो उसके लिए ऑप्शंस जब आप इंटरनेशनली ट्रैवल करोगे तो ऑप्शन है इंडिगो, वियतनाम एयरलाइंस एंड वियत जेट। आपको एक चीज़ याद रखनी है कि आपको वियत जेट को अवॉइड करना है। रीज़न इज कि वो उसके रिव्यूज उतने अच्छे नहीं है। डोमेस्टिक फ्लाइट करी थी वियत जेट, उसमें भी 2 रीशेड्यूल्स थे, सो नॉट रिकमेंडेड टोटली। देन नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि इंटरसिटी आपको ट्रांसफर कैसे करना है, तो उसके लिए 3 ऑप्शंस अवेलेबल है, बस, ट्रेन एंड फ्लाइट्स। फ्लाइट्स के लिए सेम वही जो पोर्टल्स आपको बोले उनमें से आप जाके देख सकते हो। ट्रेन्स एंड बस आप अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग आप चेक कर सकते हो। वी ऑप्टेड फ्लाइट्स बिकॉज टाइम क्रंच के कारण। एंड जब आपको लोकली ट्रैवल करना है तो आप कैसे करोगे, जैसे कि यहाँ का ओला एंड उबर होता है वैसे वहाँ पे ग्रैब चलता है। तो आपको बस अपने क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स इंडिया से ट्रैवल करने से पहले डालना है। आपको अगर कोई डे टूर्स करना है, जैसे कि मैं आपको बोल रही थी कि निनबिन, बाना हिल्स और इस टाइप के टूर्स करने हैं, तो वो आपको बुक करने हैं क्लुक के थ्रू। तो क्लुक पे सारे पैकेजेस होते हैं, वो आप वहाँ से बुक कर सकते हो। कि लोकल सिटी में जब आप ट्रैवल कर रहे हो आप स्कूटी भी रेंट कर सकते हो, पर स्कूटी रेंट करने के लिए एक बहुत बड़ा फिल्टर है कि आपके पास इंटरनेशनल लाइसेंस होना चाहिए। अगर आपके पास है तो यू कैन इजीली ऑप्ट फॉर स्कूटी ऑल्सो। सो वीज़ा के लिए मैं आपको पोर्टल साइट दे दूंगी। वियतनाम जो है वो एक ई वीज़ा कंट्री है, लाइक यहाँ पे आपको ऑन अराइवल वीज़ा नहीं मिलेगा। सो मेक श्योर जब भी आप ट्रैवल कर रहे हो एटलीस्ट 20 डेज का मार्जिन रख के, टू बी ऑन अ सेफर साइड, आप वीज़ा अप्लाई कर दो। वीज़ा आने में आपको 2 से 3 दिन ही लगेगा मैक्सिमम, बट टू बी ऑन अ सेफर साइड गिव दैट बैंडविड्थ। एंड जब आप यहाँ पे वीज़ा अप्लाई करोगे तो इसकी प्रोसेस बहुत ज़्यादा ईजी है, आपको कोई एजेंट का इंटरवेंशन नहीं चाहिए रहेगा। सो यू कैन डू इट बाय योर सेल्फ एंड इट विल कॉस्ट यू अराउंड 2500 पर पर्सन। ये जो भी बुकिंग है आप क्रेडिट कार्ड के थ्रू कर सकते हो। जस्ट मेक श्योर कि इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन जो भी है आपके क्रेडिट कार्ड पे वो इनेबल्ड हो। तो अपार्ट फ्रॉम दैट आपका 2 या 3 डेज में वीज़ा आ जाएगा। अगर आप एंड या वन मोर थिंग, जब भी आप वीज़ा अप्लाई करोगे तो यू विल हैव टू मेंशन द पोर्ट ऑफ एंट्री, जहाँ पे भी आप लैंड कर रहे हो पहली बार इंडिया से, हो ची मिन सिटी या हनोई, वो आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। सेकेंड थिंग, अगर आप फुकॉक ट्रैवल कर रहे हो तो वो वीज़ा फ्री है, वहाँ पे ये सारी चीज़ें नहीं लगेंगी। सो ई वीज़ा अप्लाई करने के टाइम पे दे विल आस्क यू फॉर द एड्रेस। सो एट दैट टाइम आपका जो भी होटल होगा उसका एड्रेस लेके आप उस एड्रेस में डाल सकते हो, फिल कर सकते हो। एंड उसके बाद में देर विल बी अ सेक्शन, दे विल आस्क यू कि आप कितने दिन वहाँ पे ट्रैवल करने वाले हो। सो जो भी आप 7 या 9 डेज जितना भी है वो आप मेंशन वहाँ पे कर दो। वियतनाम में 2 से लेकर 10,000 तक की रेंज में आपको होटल्स मिल जाएंगे। अगर हॉस्टल्स है तो वो शायद और चीप हो जाएगा, एंड उससे ऊपर भी रेंज है, पर अगर दैट टोटली डिपेंड्स ऑन यू। इनकी बुकिंग्स भी आप booking.com, इन सब एप्स के थ्रू, अगोड़ा, इन सब के थ्रू कर सकते हो। एंड आई विल ऑल्सो एनलिस्ट ऑल द होटल्स इन विच वी स्टेड। वियतनाम में चलते हैं वियतनामीज डोंग एंड US डॉलर भी। तो जब भी आप इंडिया से ट्रैवल कर रहे हो सो मेक श्योर आप पर पर्सन $300 US कैरी करना इज अ मस्ट। एंड जब आप वहाँ पे ट्रैवल करोगे, लाइक व्हेन यू रीच टू वियतनाम, वहाँ पे करेंसी एक्सचेंज एंड जो बेस्ट प्राइजेस आपको मिलेंगे वो आपको मिलेंगे गोल्ड शॉप्स पे।
बट करेंसी एक्सचेंज के भी सेंटर्स होते हैं. यू कैन गो एंड गेट योर US डॉलर चेंज टू वियतनामीज डोंग, बिकॉज वहाँ के जो भी लोकल वेंडर्स होते हैं वो यूजुअली वियतनामीज डोंग ही एक्सेप्ट करते हैं, पर वहाँ पे US डॉलर भी बहुत से वेंडर्स एक्सेप्ट करते हैं लाइक रेस्टोरेंट्स. आपको INR टू US डॉलर कन्वर्जन्स के लिए कुछ वेंडर्स हैं लाइक वेस्टर्न यूनियन, ओरिएंट, थॉमस कुक, जेनिथ. ये आपके जो भी लोकेलिटीज़ हैं वहाँ पे मिल जाएगा. यू कैन गो ओवर देयर एंड आप INR टू US डॉलर एक्सचेंज करवा सकते हो. सो अब क्वेश्चन आता है कि आपके फ़ोन्स में जो ई सिम है वो आपको कैसे मिलेगी. ई सिम के लिए आप प्री बुक कर सकते हो इंडिया से ही क्लुक पर, और जब आप वियतनाम में लैंड करोगे तो आप उसे एक्टिवेट करवा सकते हो. सेकेंड थिंग, अगर आपको ये फर्स्ट ऑप्शन नहीं करना है तो जैसे ही आप लैंड करोगे एयरपोर्ट पे, तो एयरपोर्ट के बाहर बहुत सारे वेंडर्स होते हैं लाइक दे सेल आउट द सिम्स. तो आप वहाँ पे देख सकते हो उन सिम्स को एंड फिजिकल सिम आप ले सकते हो. एंड अगर आपको बेस्ट रेट चाहिए तो मोस्टली वो आपको लोकल शॉप्स पे मिलेगा. सो अब आप वियतनाम का प्लान तो कर रहे हो, पर बजटिंग इज़ अ मेन पॉइंट. तो लेट मी एक्सप्लेन यू ऑन ऑल द एक्सपेंसेस. तो जब आप ट्रैवल करोगे तो टू एंड फ्रो की जो फ्लाइट होगी वो आपकी वो मैक्सिमम लाइक 30,000 तक मिल जाएगी पर पर्सन. आफ्टर दैट जो भी आप इंटरनल कैब बुकिंग्स करोगे एंड ऑल, तो वो आपको 10,000 12,000 तक पर पर्सन अप्रॉक्स पड़ सकता है. एंड जो भी आप इंटरनल फ्लाइट्स लोगे वो दैट विल कॉस्ट यू अराउंड लाइक 5 to 6,000 पर पर्सन. लाइक फॉर द रेस्टोरेंट्स इफ़ यू आर 4 people तो मिनिमम आपका 3,500-4,000 तक का बिल आएगा, जो कि इंडिया में भी आ जाता है. हलोंग बे का जो क्रूज था लाइक वो दैट कॉस्टेड अस अराउंड 25,000 एंड दैट एक्सक्लूडेड कैब्स. कैब आने और जाने की हनोई से लेके हलोंग बे तक, वो हमें आना जाना भी 10,000 तक का पड़ा था कॉस्ट. तो टोटल लाइक 35,000 हमको पड़ा. एंड अदर एक्टिविटीज़ लाइक बाना हिल्स, कोकोनट राइड एंड ऑल. तो बाना हिल्स में 3,500 पर पर्सन, कोकोनट वाटर राइड 600 पर पर्सन, एंड जो मेसन सेंट्रल की टिकट थी दैट वाज अराउंड 200 INR पर पर्सन. सो लाइक क्यूमुलेटिवली आपको 5,000 के अंदर में वो सारी चीज़ें आ जाएंगी. सो ओवरऑल एक्सपेंस, सो इट विल कॉस्ट अराउंड 2.5 फॉर अ कपल. अगर आप बहुत अच्छे से सारे स्टेज कर रहे हो, उसमें क्रूज भी इंक्लूडेड है, तो 2.5 में आपका कवर हो जाएगा. एंड इफ यू आर अ बैचलर, यू आर गोइंग फॉर हॉस्टल्स, सो दैट वुड बी वे मोर चीपर देन दिस. सो दिस वॉज द डिटेल वीडियो अबाउट वियतनाम, द एक्सपेंडिचर एंड एवरीथिंग. एंड येस, डू शॉप ओवर देयर. मैंने भी वहाँ से बहुत शॉपिंग करी. आई विल ऑल्सो पुट अ शॉट ओवर देयर कि मैंने वहाँ से कौन सी चीज़ कितने में ली एंड आप कौन कौन सी जगह विजिट कर सकते हो. सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. एंड हम और भी ट्राई करेंगे कि हम और भी वीडियोस डालें, डिटेल गाइड ऑफ द सिटीज़ विच वी विजिटेड. आप कोई भी फ्रेंड्स अगर वियतनाम ट्रैवल कर रहे हो तो प्लीज़ शेयर दिस वीडियो टू देम. बहुत मेहनत करी है हमने. डेफिनेटली सब्सक्राइब, और अगर आपके कोई फीडबैक्स भी हैं तो डेफिनेटली आप दो. एंड ऑल्सो कमेंट इन द कमेंट सेक्शन. वी विल ट्राई टू रिस्पॉन्ड यू एज सून एज पॉसिबल. सो स्टे ट्यून्ड फॉर आवर अदर वीडियोज़. बाय.